Hey dear soul family, this is Soul Healer Sonali, and today I've come up with a new reading that is your November energies. Okay, what all energies are opening in the month of November? We'll be discovering that, and this will be a short reading. Hopefully, let's see. Dear universe, please guide us with our November energies for the collective. Energies in the month of November 2023 for the collectives. Thank you. Energies in the month of November, the collectives. Energies in the month of November. Energies in the month of November. This one. One more. Energies in the month of November, the collectives. This one. Let's check with tarot. Energies for the month of November. November 2023. Energies for the month of November. November for the collectives. Okay. Let me spread your piles and then we'll see the messages. Alright, so we have very beautiful energies for the month of November. Okay, the first card that we have is this. I hope it's visible. Let me read it out. It's actually gibbous waxing fire moon. Okay, that says individuality, your birds. So what I'm feeling is November के month में आप you feel very passionate for your vision, for your passion, for a new project that you have in hand. Maybe this is something जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, आपको आइडिया है, आप एक्शन भी ले रहे हो. इट्स मोर लाइक कि यू आर listening to your inner calling, something, some signs which you are already getting. कुछ तो ऐसी गाइडेंस जो डिफरेंट डिफरेंट वेज से, मे बी थ्रू सम एंजल नंबर्स और इन सम अदर टैरो रीडिंग्स, यू आर गेटिंग सम कॉलिंग. कुछ करना है, ये करना है, ऐसे करना है, इसको ट्राई करना है. मतलब आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये काम करेगा. दिस इज समथिंग which is your signature. It's something which calls to your soul. Yeah, it's your signature. Yes, that is what I'm getting. Very specific to you, very identify, like ऐसा कुछ जिसमें आपका यूनिक टच है. Yes, exactly. तो कुछ ऐसा आप ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, या फिर यू हैव अ वेरी सटल बट वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस विस्पर विद इन, कॉलिंग फ्रॉम विद इन कि ये करना है, ऐसे करना है. And yes, and with this upward David star triangle, I am getting that your divine masculine is been taking the steps. मतलब ग्राउंड रियलिटी पे जाके आप कुछ एक्शंस भी कर रहे हो उसके बारे में. इट्स नॉट ऑल इन द एयर, ऐसा नहीं है. ओके, यू हैव, इट्स मोर लाइक कि अंदर से जो इंट्यूटिव गाइडेंस या जो भी आप डिवाइन फेमिनिन के एस्पेक्ट से आपको जो गाइडेंस मिल रही थी सिंस सम टाइम, ओके,
उस पे यू एक्चुअली एक्टेड अपॉन, ओके, आपने फर्स्ट स्टेप लिया उसके उसके प्रति। और ये जो नवंबर का मंथ होगा, दिस इज मोर लाइक वेयर यू आर वेरी वेरी डेडिकेटेड। आई एम नॉट सेंसिंग एनर्जी ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा यू आर बर्निंग आउट योर सेल्फ, एग्जॉशन की एनर्जी नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है, बट इट्स एन एनर्जी वेयर यू यू आर वेरी श्योर, you have very 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 crystal clear clarity within yourself, surety within yourself that which you are working on, the thing which calls to your soul, this is it, this is the thing for you. This is your like this is your soul's calling, your soul path, your life path, something like that. Very strong feeling you are getting from within, very very crystal clear clarity that you have now. And this is something where like this is a path, or this is that this new entrepreneurship that you have, this new project that you have, this is something like if some project you are getting at your work, okay, right now, दिस इज समथिंग जहाँ पे आप अपना पोटेंशियल, योर इंडिविजुअलिटी, योर स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें निखर के बाहर आएंगी, दिखाई देगी, ओके, दुनिया के सामने आएगी. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड यू आर वेरी वेरी क्लियर राइट नाउ. दिस इज़ इट. इसी का इंतज़ार था हमेशा से जैसे, एंड इट विल बी योर ड्राइविंग फोर्स. Okay, this particular endeavor will be your driving force in the month of November. You are paving the path of your individuality. What defines you? What is your signature? Okay, that is what which you are laying its foundation in the month of November. Then we have got the energy of Bardo. Okay, is visible? Yeah. This Bardo is actually the in-between phase, the transition period. So like in my last reading also where I mentioned, it was on the transition as we are getting into this 2024, okay, in the last 3 months. So ये जो time period है November का especially, this time is more like your in between energy, जब आप पूरी तरीके से अपने फुल ऑन एक्टिव मोड, फुल ऑन हाईएस्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई है, और अब हमें पता चलेगा कि ये इस क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकती है, कितनी देर तक की उसकी वर्किंग कैपेसिटी है एंड ऑल दैट, है ना. वो सारी चीज़ें पता करने से जस्ट पहले का जो फेज़ होता है, मतलब जब बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगा है, वैसा टाइम पीरियड की एनर्जी है नवंबर से. ओके, तो इट्स मोर लाइक कि आप सेटिंग स्टोन सेट कर रहे हो, ओके, इस मंथ में, नवंबर की एनर्जी में, बट ये बहुत ही ज़्यादा आपको श्योरिटी दे रहा है ये मंथ, क्लैरिटी दे रहा है, सर्टेनिटी दे रहा है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, ओके, कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा विजन है, वो इस बात से, इस तरीके से, इस प्रोजेक्ट से, इस एंटरप्रेन्योरशिप से, इस विजन से वो पूरा हो सकता है, वो पूरा हो जाएगा, नॉट हो सकता है, वो हो जाएगा. दिस इज इट. यस, यही तो चाहिए था, यही तो अपॉर्चुनिटी के मैं वेट कर रही थी. अब मैं दिखा सकती हूँ, अब मेरा एक्चुअल पोटेंशियल बाहर निकल के आएगा. हमेशा से इसी का तो इंतज़ार था, समथिंग लाइक दैट. इस तरह की कॉलिंग, मतलब इस तरीके की वॉइसेस आई एम लिसनिंग, एंड जो ये टाइम है, ये इट्स मोर लाइक इन ट्रांजिशन फेज. इट्स लाइक कि अब आपकी जो पास्ट सेल्फ था, जो आपकी पास्ट लाइफ थी, वो नहीं है अब. ओके, नाउ द रियलिटी विल बी ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट फॉर यू. When I said different, it was 1001. Yes,
lot of divine things are happening right now energetically. I can sense it. So तो पास्ट वर्जन नहीं है अब, ओके. एंड नवंबर के मंथ में पूरी तरीके से जो आपका न्यू वर्जन होगी, न्यू रियलिटी है आपकी, वो भी पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हुई है, ओके. तो ये जो मंथ है इट्स मोर लाइक अ ट्रांजिशन पीरियड, जब आप पास्ट एनर्जी से निकल चुके हो, यू आर नॉट देयर एंड यू आर नॉट completely in the new reality also, okay, but you are coming one like quite closer to this new reality. With each passing day in the month of November you will be coming closer to your new reality, ठीक है. तो past का तो past version that is old, now it will be your version 2.0 which you will be laying its foundational steps in the month of November. Yes, your version 2.0, your life second inning, something like that, some major energy. We have some very beautiful messages. Like the first card we have is dream, which says universe speaks to you through your dreams, okay. So या तो आप जागते हुए सपना देख रहे हो, meaning you have a vision in your heart, something calls to your soul, या तो ऐसा है, या फिर it's like कि आप सोते हुए सपने देख रहे हो पर वो सपने आपको याद रहते हैं. इट्स नॉट कि वो भूल गए और गायब हो गया, ख़त्म नहीं. उठने के बाद भी देयर इज सटल ग्लिम्सेस जो आपको उस सपने का याद रहता है. एंड दैट्स वाई आई एम गेटिंग दिस गाइडेंस कि किसी को यहाँ पे ना जर्नलिंग, ड्रीम जर्नलिंग करने की ज़रूरत है. मीनिंग व्हेन यू वेक अप, तो जो भी ग्लिम्सेस आपको क्लिक करें, जो भी आपको याद आए ना, उसे नोट डाउन कर लो, उसे नोट डाउन करिए ताकि आप उस पर रिफ्लेक्ट कर सको. एंड ड्यूरिंग द डे आपको उन ड्रीम से जो मैसेजेस मिलने हैं वो इंटरप्रेट हो सके, ठीक है. तो फॉर सम ऑफ यू दिस इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग टू जर्नल योर ड्रीम. क्या ग्लिम्सेस दिखे, क्या था सीन, और उसका कोई कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत नहीं है. यस, दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग कि उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है. यार ये क्या सपना था, ये तो मतलब बेतुकी सर पैर की बातें, अभी ये था फिर ये हो गया फिर वो हो गया, पता नहीं सीन्स कैसी बन रही हैं, बदल रही हैं सपने में. नहीं, आपको कुछ कंक्लूड नहीं करना है. जस्ट वॉट एवर इट इज़ एज इट इज़ रॉ ड्रीम को जर्नल कर लो, मेंशन कर लो. बिकॉज जब आप उसे नोट डाउन करोगे ना, तब धीरे धीरे उसकी परतें खुलेंगी. उस सपने में जो मैसेजेस आपको मिलने हैं, जो मीनिंग निकलना है, वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होगा. तो फॉर सम ऑफ यू जो सोते हुए सपना देखते हैं, राइट, सो रहे हो और नींद तब आपने सपना देखा है, ओके, उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो भी ग्लिम्सेस उन्हें याद आए अपने सपने की, उसे जर्नल कर लो, सो दैट ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग दैट वीक, लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली आप को उसके मैसेजेस, इंटरप्रिटेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन आपको मिल सके. नहीं तो अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे उसे इंटरप्रेट कर पाओगे, राइट. एंड कुछ वो जो जागते हुए सपना देख रहे हैं, मीनिंग उनका कोई विजन है जिसके प्रति वो एवरी डे मोमेंट बाय मोमेंट काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ठीक है. तो दिस ड्रीम विच यू हैव, यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो रोल आप प्ले करोगे आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा फॉर योर कम्युनिटी, फॉर द पीपल अराउंड यू, ओके. Next card that we have is the card of choice. I saw 1414. Okay, so choice says, by staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. Meaning to say is कि हमें ये हमारा ही चॉइस होता है कि हमें एक कॉन्शियस लाइफ जीनी है या फिर अनकॉन्शियसली बस जी रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है, राइट. सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ज़िंदगी चल रही है, ऐसे जीना है, या फिर कॉन्शियसली अगर दिमाग में कुछ थॉट आ रहा है तो वो क्या है, लाइक ऑब्जर्व करते हुए, ओके. अगर कोई इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, अगर जेलेसी की इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, या कंपटीशन के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, किसी भी तरीके के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करके जीना है कि अच्छा, ओ ओके,
मैंने इस तरह से रिएक्ट किया क्योंकि मुझे मुझे डर लग रहा है कि मेरी पोजीशन का क्या होगा। ये जो न्यू जॉइनी है, इसे इतना अटेंशन मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा इज़ इट समथिंग, मतलब क्या मुझे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या मुझे स्विच का देखना चाहिए, वॉट एवर, है ना। मुझे डर लग रहा है, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। इतना गुस्सा कर रही थी या चिड़चिड़ा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा मेरी तरफ, मुझे काम नहीं मिल रहा है अच्छा। तो इस तरीके के अगर कुछ भी बिहेवियर आप शो कर रहे हो, ठीक है, तो उसके प्रति कॉन्शियस होना है या फिर बस अनकॉन्शियसली बिहेव करते रहना है, रिएक्ट करते रहना है। दैट इज़ द चॉइस विच वी हैव टू मेक, ओके, वेदर वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू लाइफ सिचुएशन और वी जस्ट हैव टू कीप रिएक्टिंग टू इट, है ना। तो ये तो हमारा ही चॉइस है। तो जब भी आप कॉन्शियसली ये चॉइस करते हो, कॉन्शियसली चूज करते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके थॉट्स क्या उठ रहे हैं, उनका रूट कॉज क्या है, कहाँ से वो थॉट्स आए हैं, ओके। अगर जेलसी, अगर इनसिक्योरिटी है तो वो कहाँ से आई है शुरू, अगर जेलसी हो रही है तो वो कहाँ से शुरू हुआ है, एग्जैक्टली हुआ क्या था जिससे कुछ फीलिंग आया, इनसिक्योरिटी का आया, फियर का आया, वॉट एवर, बैक ट्रैक करना, ठीक है, अपने ही अंदर के इमोशंस और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। अगर आप ये चूज कर रहे हो, और व्हाट आई एम फीलिंग इज कि आप ये चूज करोगे, और जब जब आप ये चूज करते हो, यू गाइड योर जर्नी इन द राइट डायरेक्शन, यस, okay, you will be in the on your right, that's the right path for you to live a conscious life. And the third card which we got is very beautiful, that says celebration. Celebrate your achievements, you truly are a gift to the universe. So what you are bringing to the table, जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, जो आपका यूनिक एसेंस है, that is something which no one else can bring it up, because we all are unique, right? हर किसी के पास अपना अपना स्पेशलिटी होता है, अपना टैलेंट होता है, which is unique to them, and we should celebrate our uniqueness हमेशा. सो आई थिंक नवंबर के मंथ में थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी भी रहेगी, एज इट इज़ इट्स दिवाली फेस्टिवल ऑल्सो इज़ देयर, ओके। तो फेस्टिव जोन्स हैं, शायद छठ भी पड़ेगा दिवाली के बाद, राइट। तो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी, गैदरिंग की एनर्जी, फैमिली रीयूनियन वीक, yes, in the Christmas is also coming, right? So Thanksgiving week is there, so I'm like feeling very friendly reunion sort of celebration, light-heartedness, so those sort of energies will also be there in the month of November. Now there are some मैंने tarot cards निकाले हैं for the month of November, okay, and let me guide you through what we have, okay, these 7 cards. So the first card which we got is devil energy, okay. डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. See, if you see there's imagery, आपका जो माइंड है ना, that is one towards which you need to be very cautious, okay. जो मैसेज हमें चॉइस के कार्ड पे मिल रहा था, राइट, कि आप कॉन्शियस हो कि आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या इमोशंस अराइज हो रहे हैं. बेसिकली जो आपके थॉट्स हैं, राइट, वो आपको उठा भी सकते हैं और आपको गिरा भी सकते हैं. क्योंकि अगर आप डिवास्टेटिंग थॉट्स के साथ ही रहे, ओके, और आपने अपनी वाइब्रेशंस को लोअर डाउन कर लिया, सेल्फ को डिमोटिवेट कर लिया, कॉन्फिडेंस कम कर लिया, तो नेचुरली आप कुछ कर नहीं पाओगे आगे, राइट. बट अगर आप चूज़ करो कि
कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, और उन्हें प्रोसेस करना है। ओके, ये आया तो ये कहाँ से आया, ओके मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, इस वजह से मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर डर को दूर करने के लिए? अगर किसी स्किल के रिगार्डिंग है तो क्या मैं कोई स्किल सीख सकती हूँ जिससे वो डर ख़त्म हो जाए? अगर रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी की वजह से कुछ फियर्स आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं अपने पार्टनर से बात कर सकती हूँ, लाइक कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जिसके गैप से अच्छे खासे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? सो नेवर, मतलब अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप कभी मत आने देना। दैट इज़ वॉट द मैसेज विच आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू फ्रॉम दिस। जिस भी तरह के थॉट्स हैं, जिस भी तरीके के इमोशंस हैं, उन्हें ऑब्जर्व करिए, उन्हें प्रोसेस करिए एंड टेक सम एक्शंस, ताकि इन थॉट्स या इमोशंस, हैवी थॉट्स, हैवी इमोशंस, इनकी वजह से आपकी ओवरऑल एनर्जी डिग्रेड ना हो एंड आपको जो आपका विजन है, जो आपका ड्रीम है, जो पैशन, जो जिस चीज़ के लिए आप लाइक एक आपको कॉलिंग आ रही है कि मुझे ये करना है, उसके प्रति आपकी एनर्जी ना पल्यूट ना हो। ओके, दैट इज़ व्हाट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मंथ जो नवंबर का है ना, इसमें डर लगेगा। डर तो लगेगा, कुछ एक्शंस ऐसे आप लोगे या लेने पड़ेंगे, आएंगे सामने, जिसमें घबराहट होगी, जिसमें डर लगेगा। बट तो यही तो होता है ना, यही तो वो बात है कि आप डर लगने पे डर गए और पीछे हट गए, या फिर आप करेज को शो कर रहे हो। बिकॉज करेज का मतलब ये नहीं होता कि डर नहीं लग रहा है, करेज का मतलब होता है कि डर लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली पता है, कॉलिंग आ रही है कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करना है, तो डर लगने के बावजूद आप उसे करते हो। दैट इज़ वॉट करेज इज। ओके, तो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। सम एक्शंस आप अपने लाइफ में आपको ऐसे लेने होंगे, कुछ डिसीजंस या कुछ एक्शंस। आई एम मोर गेटिंग एज एक्शंस, नॉट जस्ट वीक डिसीजंस, बट ऑन ग्राउंड एक्शंस जहाँ पे करेज चाहिए होगा। ओके, एंड थॉट्स को, इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, उन्हें खुद को अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशंस को डिग्रेड नहीं करने देना है। ओके, लोअर नहीं करने देना है थॉट्स को। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। Another thing, another second card which came for the month of November is the moon card. Okay, so this moon card, it's more like mystery. Okay, it's more like mysteries, and अभी सारी चीज़ें आपको भी पता नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये मिल जाएगा, जो मैं सोच रहा हूँ या जो बात में मैं चल रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, मुझे ये सब मिल जाएगा। बट आपको अभी पता ही नहीं है कि आपको क्या 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 मिल सकता है। वॉट इज़ यूनिवर्स प्लान फॉर यू, वॉट ऑल इज़ देयर लाइक रेडी टू ओपन इन योर लाइफ, आइडिया भी नहीं है आपको अभी। दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग एनर्जेटिकली। आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी बट वेरी मिस्टीरियस एनर्जी एट द सेम टाइम, मीनिंग कि क्या क्या पन्ने खुलने वाले हैं, क्या क्या पत्ते निकलने वाले हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं है। बट एक एंटिसिपेशन रखने की गाइडेंस है, मिल रही है कि जो होगा वो दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। ठीक है, दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो डरने, घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करिएगा एंड पैशन को आंसर करना है। इनर कॉलिंग जो आ रही है उसको आंसर करना है एंड लेट डिवाइन unfolds your path little by little, gradually, because there is a lot, we're wrong, a lot for you. Yes. Yes, a lot is there. And see, what's the next card which we got? The Chariot, card number 7. So if you are seeing 777, okay, something could also be happening on 7th of November. Yes, this I also got
for some of you. So chariot is like अब तक जो जिंदगी थमी हुई सी लग रही थी, एक कोई फेज जो आगे बढ़ नहीं रहा था, ना जाने कितने सालों से कितने समय से वहीं अटके हुए हैं. ओके, फिर वो चाहे रिलेशनशिप की स्टेटस हो या करियर की ग्रोथ हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, या जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपका बिजनेस है, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो. मे बी सम आर म्यूजिशियन, समथिंग इन क्रिएटिव फील्ड. ठीक है, तो जो आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसमें अगर एक स्टैग्नेंसी थी कि रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा था, ओके, या रेसिप्रोकेशन नहीं मिल पा रहा था फ्रॉम योर पार्टनर और योर ऑडियंस, ओके, तो उसमें एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मूव अप थ्रस्ट और जैसे ना कि उछाल, दैट इज व्हाट द एनर्जी आई एम फीलिंग. ओके, तेजी आने वाली है in the month of November. And you have next card which we got is the King of Wands energy. Okay, so this is like you are standing tall, full of passion, full of enthusiasm. You are very flexibly managing through everything which is coming on your way. And ढल रहे हैं आप परिस्थितियों में, situations में, whatever जो भी ज़रूरत पड़ रही है करने की. लाइक फाइनेंसेस ऐसे होने चाहिए, इस तरह से मैनेज करना है, ये देखना है, लॉजिस्टिक्स यहाँ जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब सारी यू आर लाइक fire on fire positively. Okay, so much filled up of energy, charge, like the lion which is there on back of the this screen card. You can see it's like this is what I'm getting. The lioness within you, the lion within you, that is ready to roar now. It's ready to roar. You are like, I am 100% on charge, on fire, I'm ready to go, I'm on set, let's get set, go. That is the energy for the month of like November. Okay, now next card that we got for the month of November is this Three of Swords card. Okay, so this Three of Swords card, it's what I'm getting is, it is not that you will be hurt or your trust will be broken. It's not like that. It is more about the past. Okay, it's more about the past. Like what I'm getting a feeling like in the past something has happened in your life, maybe in your relationship, in your personal life, in your personal journey, self growth journey, or in your career. Something is there where you felt alone, like you have no one, you were left all alone on your own, okay, in the cold. So certain things have happened जिसने दिल तोड़ दिया, बहुत रोए, बहुत अकेलापन फील करना, डर रहना, एक अकेले हो जाने का डर, और किसी पे ट्रस्ट करने पे डर, ट्रस्ट करने से डर लगना. इस तरह के फेजेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं. बहुत जल्दी मैच्योर हो जाना, अपनी इनोसेंस खो देना, अंदर जो एक मासूमियत, बबलीनेस, चेयरफुलनेस, वो कहीं ख़त्म हो गई. उस फेज़ में ऐसा एक फेज़ आया था आपके पास में. ओके, बिकॉज आई एम कनेक्टिंग टू लॉट ऑफ पीपल्स एनर्जीज. तो हर किसी की अलग कहानी, बट कुछ किसी की कहानी ये कि कोई विश्वास नहीं कर रहा, जो आप के पोटेंशियल है, जो आप करना चाहते हो, उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, कोई साथ खड़ा ही नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा. किसी की रिलेशनशिप में अकेला महसूस करना, सबके होने के बावजूद एक अकेलापन सा रहना कि एक्चुअल में कोई ऐसा है ही नहीं मेरे पास जिससे मैं अपना दिल हल्का कर सकूं, जो मन में बेचैनी चल रही है वो शेयर कर सकूं. कोई ऐसा जिस पे ट्रस्ट हो कि वो धोखा नहीं देगा, वो मिसयूज़ नहीं करेगा, मेरी फीलिंग्स के साथ छेड़खानी नहीं करेगा. एंड
जेन्युइन गाइडेंस, जेन्युइन एडवाइस देगा। ऐसी किसी अपने की कमी फील करना, अकेला पाना, खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करना, तो ये जो आपका फेज़ था, ओके, इस फेज़ ने मतलब इस फेज़ से आप बहुत ज़्यादा वूंड हुए थे। आपका इनर चाइल्ड बहुत वूंडेड था, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी, बहुत सारे फियर्स थे, बहुत सारा सेल्फ वर्थ इश्यूज डेवलप हो गया था। मैं कभी कुछ कर भी पाऊँगा या कर भी सकती हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मेरे अंदर कुछ लाइक डू आई रियली पोजेस एनीथिंग स्पेशल, मतलब मैं कभी कुछ कर भी पाऊँगा लाइफ में, मैं कुछ कर सकता हूँ, आई डोंट नो। वो जो सेल्फ वर्थ का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मेजर वूंड आपको हुआ था, उसने बहुत सारी चीज़ें आपके भीतर हिला के रख दी थी। दैट्स द नेक्स्ट कार्ड विच वी गॉट इज द टावर कार्ड, ठीक है। तो what's happening is with this tower card, the energy that I am getting is universe is coming into the picture, ठीक है। universe is coming into the picture and या तो आप खुद चूज करोगे, ठीक है, बट कई बारी जब हमें अपना पोटेंशियल पता नहीं होता, हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तो हमारे अंदर इतनी करेज ही नहीं होती कि हम खुद से कुछ मतलब कोई बिग स्टेप लें, कुछ कर सकें, राइट। तो these are the clarifications which I got for this Three of Swords energy. So the first card which we got is this Tower card. So what I'm getting like feeling कि आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे यूनिवर्स केम इनटू द पिक्चर, ठीक है, एंड कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई जहाँ पे ना चाह के भी आप किसी सिचुएशन में आ गए। मतलब कुछ ऐसा कि से कहते हैं ना कि झट से ज़िंदगी बदल गई, पलट गई, या झटके से ज़िंदगी बदल गई। इट्स मोर लाइक दैट। तो एक्चुअली यूनिवर्स केम इनटू द पिक्चर और उन्होंने आपको इस इन्वायरमेंट में डाला है, ओके। रिसेंटली समथिंग हैज़ हैपन इन योर लाइफ, इस इन्वायरमेंट में डाला है जिसने आपको, जो एक्चुअली आपके पोटेंशियल को निखर के बाहर आने में मदद करेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ जो इस थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की वजह से चोक डाउन हो गया था, ओके, आवाज़ बंद हो गई, दिल ब्लॉक्ड हो गया, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, डर लगने लगा, खुद की वर्थ पे डाउट होने लगा, ये सारा चीज़ जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए थे इतने सारे, इस टावर मोमेंट से, इस सडन शिफ्ट की वजह से जो आपके लाइफ में आया है, ये नया चैप्टर जो आपके लाइफ में आया है, ये डेफिनेटली इट्स समथिंग जो कि इनिशियली आपको अच्छा नहीं लगा होगा। लाइक इनिशियली बहुत रोना धोना, घबराना, डर लगना, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, समथिंग लाइक दैट, वैसी फीलिंग। बट ये एक्चुअली यूनिवर्स का किया धराया है, ओके। उन्होंने ये सिचुएशंस क्रिएट की हैं ताकि जो कुछ भी इसमें खो गया आपका, वो चीज़ें आपको वापस मिल सके, आप दोबारा खुद को बिल्डअप कर सको, दोबारा अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज कर सको, उसे पा सको, खुद को पा सको। दैट इज़ द एनर्जी विच आई एम गेटिंग। एंड सी द नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन विच वी गॉट फॉर दिस थ्री ऑफ सॉर्ड्स इज द लवर्स एनर्जी। इसमें कुछ इशू तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, इज द लवर्स एनर्जी, ओके। सो द लवर्स कार्ड, सो लाइक कार्ड नंबर 6, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में रिसेंटली, इस सिचुएशन ने आपको एक चॉइस, एक तो राह पे ला के खड़ा कर दिया था कि अब यहाँ से आगे क्या करना है, वही कहानी फिर से रिपीट होनी है या कुछ और चाहिए। एंड व्हाट आई फील इज़ कि आपने ये चॉइस की है, यस, आपने कॉन्शियसली ये चॉइस की है कि मेरी ज़िंदगी खूबसूरत होनी चाहिए,
मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, पीस ऑफ माइंड हो सकता है, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में। दीज लाइक इन चीज़ों की क्लैरिटी रखते हुए आपने अपनी लाइफ में कुछ चॉइसेस किए हैं, एंड दीज चॉइसेस will bring lot of celebrations in your life, will bring a lot of celebrations. And नवंबर के मंथ में आप इन सिचुएशंस को, इस लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे यू आर एक्चुअली enjoying your dream life. Okay, it's more like dream life. There will be a lot of celebration, some vacations वाली vibes आ रही हैं मुझे कि किसी नेचर प्लेस पे ट्रैवल करने जाना, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम, कोजीनेस एंजॉय करना। ओके, एक बहुत ही लाइट हार्टेड सी एनर्जी, वो सब कुछ जो इसमें ख़त्म हो गया था, वो इनोसेंस जो चली गई थी, वो इनोसेंस वापस आने वाली है। ओके, वो आप फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे इस नवंबर की मंथ में। गेटिंग माई पॉइंट? And yes, the central energy, the king of wands, you will be very high. मतलब तो बस छा जाना है। Okay, so yeah, these are the messages. Anything else? The dreams, the universe speak to you through your dreams. The vision that you have, it's actually not yours, but feeded in your system by divine, by universe. Yeah, so thank you so much for being with me in this reading, and if you like this content, then I would request you to please comment down something in this video, so that next time when I will be doing next reading, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना मेरे लिए आसान हो, और आपके गाइड्स डायरेक्टली मुझे चैनल यूज़ करके आपको मैसेज दे सके। ठीक है, सो जॉइन द सोल फैमिली जस्ट बाय कमेंटिंग समथिंग, एंड या कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू वांट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।